اللہ اللہ کر کے بالآخر آج حیدرآباد سکھر موٹر وے کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا۔ یہ وہ منصوبہ ہے جنوری 2017 یعنی پچھلے 6 سال سے التوا کا شکار ہے۔ 8 ماہ قبل تو اس منصوبے کی مالیاتی منظوریاں بھی مکمل ہو گئی تھیں، لیکن پھر اس حکومت کے آنے کے بعد سے 8 ماہ کی خاموشی رہی اور اب پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اس منصوبے کا کریڈٹ لینے کے لیے دوڑ میں شامل ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے سے صرف چند ماہ پہلے اربوں روپوں کی کرپشن کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اس پروجیکٹ میں اینٹی کرپشن ایف آئی اے کے بعد اب نیب بھی اس گڑبڑ گھوٹالے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس سے پہلے کرپشن کے معاملات سامنے آ گئے۔ ہم اپنے کئی پروگرامز میں اس کرپشن کا پردہ چاک کر چکے ہیں۔ 306 کلومیٹر طویل حیدرآباد سکھر موٹر وے کی فیزیبلٹی رپورٹ اور منصوبے کا ڈیزائن جنوری 2017 میں منظور ہوا تھا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں جولائی 2020 میں ایکنک میں یہ پروجیکٹ پیش کیا گیا تھا اور مئی 2021 میں سی ڈی ڈبلیو پی نے اس کی منظوری دے دی تھی۔ مارچ 2022 میں اس منصوبے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے منظوری دی تھی، اور اس حوالے سے سابق وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور سابق وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے اس منصوبے کو سندھ کے لیے عمران خان کا تحفہ بھی قرار دیا تھا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پی 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 اتھارٹی جو بنی ہے، جس کو میں چیئر کرتا ہوں، اس نے جو پہلا بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی ہے 206 ارب روپے کا منصوبہ ہے، وہ حیدرآباد سے سکھر کا موٹر وے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس سال کام شروع ہو جائے گا۔ 50 ارب روپے اس سال انشاءاللہ اس کے اوپر اخراجات بھی آ جائیں گے۔ سکھر حیدرآباد جو ہے اس کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے بورڈ سے منظوری ہو گئی، سی ڈی ڈبلیو پی سے منظوری ہو گئی، پچھلے ہفتے ایکنک سے منظوری ہو گئی۔ وہ بڈنگ کے لیے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بڈنگ مکمل ہوگی جلد، اور اس کے بعد یہ حیدرآباد سکھر کا تقریباً 200 ارب روپے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ سب سے بڑا منصوبہ اس علاقے کے لیے جو آ رہا ہے وہ حیدرآباد سے سکھر کی موٹر وے ہے۔ 200 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی 18 نومبر کو اس منصوبے کی حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے کی بڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 سے 3 مہینے میں یا انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان خود آئیں گے حیدرآباد میں اور اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پہلا موٹر وے سندھ کو انشاءاللہ عمران خان کی حکومت دینے جا رہی ہے۔ حیدرآباد سکھر کا بڈز آ چکے ہیں اور انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر عمران خان کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس سے قبل 2015 سے 2017 کے دوران متعدد بار سابق وزیر اعظم نواز شریف نے حیدرآباد سکھر موٹر وے منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ موٹر وے کراچی کو حیدرآباد اور سکھر سے ملا کے اسلام آباد تک پہنچے گی۔ نواز شریف چلے گئے اور یہ وعدے اپنی جگہ موجود رہے تھے۔ کراچی سے حیدرآباد اس وقت زیر تعمیر ہے، موٹر وے جو ہے زیر تعمیر ہے، پھر حیدرآباد سے اس نے سکھر آنا ہے، اور وہ پورشن جو ہے اس کے بارے میں ہم تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے جلدی ہم اپنا انتظامات کریں۔ یہ جو موٹر وے لاہور تک رک گئی تھی 1999 میں، یہ وہیں رکی پڑی تھی، آج وہ موٹر وے چل پڑی ہے، بہت زوروں سے زیر تعمیر ہے الحمدللہ۔ سکھر سے حیدرآباد جو ہے وہ انشاءاللہ بھی اس سال نہیں بلکہ اگلے چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ ہو جائے گا۔ پھر حیدرآباد سے کراچی یہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ اس سال میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ سڑک کراچی سے شروع ہو چکی ہے، حیدرآباد پہنچنے والی ہے موٹر وے۔ یہ جو موٹر وے ہے یہ اب حیدرآباد جب پہنچے گی تو انشاءاللہ پھر یہ آگے سکھر جائے گی، اور 6 لین موٹر وے سکھر جائے گی۔ چند مہینوں میں اس کا کانٹریکٹ فائنلائز ہو جائے گا۔ یہ سفر ہے جو اس موٹر وے کا جاری ہے اور جاری ہے۔ وزیر اعظم بدل رہے ہیں مگر یہ سفر اپنی جگہ جاری ہے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کب بننا شروع ہوگی اور کب اختتام کو پہنچے گی، بہرحال آج اس کے سنگ بنیاد کو رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ آج اس کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا، لیکن حیران کن سوال یہ ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ تعمیر کہاں اور کیسے ہوگا، کیونکہ منصوبے کے لیے زمین درکار ہے اور اس کی خریداری نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ زمین کی خریداری کے لیے وفاق کے جاری کیے گئے فنڈ میں سے 5.5 ارب روپے مبینہ طور پہ سندھ کی کرپٹ مافیا اور وفاقی ادارے NHA نے ہڑپ کر لیے ہیں۔ آلریڈی یہ کام ہو چکا ہے۔ مٹیاری اور نوشہر فروز کے ڈپٹی کمشنر کرپشن میں ملوث پائے گئے۔ شاید اسی پس منظر میں آج تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی طور پہ اس موٹر وے کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کا عندیہ دیا، گویا کہ وزیر اعظم نے کرپشن فری موٹر وے کا حکم دیا ہے، گو کہ جو حالیہ اس میں کرپشن ہوئی ہے، جو اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے، اس معاملے میں رنگے ہاتھوں اس معاملے میں معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मोटरवे का हिस्सा उसी क्वालिटी का होगा जो कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मोटरवे बनी है। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं जो मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। वो होगा, शाह साहब को लूँगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हैदराबाद सखर M6 मोटरवे मंसूबे की लागत 200 अरब रुपए से पहले ही बढ़ के 307 अरब हो चुकी है। 30 माह में बताया गया मंसूबा मुकम्मल होगा। 15 इंटरचेंज होंगे, दरिया सिंध पर एक बड़ा पुल होगा, 19 अंडरपासेज और 6 फ्लाईओवर्स भी इसमें शामिल होंगे। मगर मंसूबा शफाफ होगा, इसमें कौमी ख़जाने को सही शफाफ तरीके से ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। इस पर बहुत संगीन सवालात है क्योंकि संग बुनियाद बाद में रखा गया है। अरबों रुपयों की करप्शन का बाजार पहले ही गर्म हो चुका है। इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार हम उसकी तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। एक बार फिर इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया जिसमें पहले ही 5.5 अरब रुपए की करप्शन तो सामने आ चुकी है। क्या इसके बाद इक़दामात क्या लिए गए? NHA ने इस मंसूबे को अब इसमें मज़ीद अरबों की करप्शन ना हो उसको रोकने के क्या इक़दामात किए और मज़ीद तहक़ीक़ात इस मामले में, क्योंकि 45 करोड़ रुपए तो एक डिप्टी कमिश्नर साहब के घर से मिल गए थे, बाकी 5 अरब रुपए अभी गायब हैं, उसकी रिकवरी का क्या हाल है और आइंदा के लिए क्या सूरत हाल हो रही है और मज़ीद क्या इसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो करप्शन का बाज़ार यहाँ गर्म रहा है मुसलसल? जी खान साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है जो आपने उठाया कि जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है या जिसका संग बुनियाद रखा गया है वो मंसूबा जिस ज़मीन पर तामीर होना है उसकी ज़मीन की ख़रीदारी अभी तक नहीं हो सकी, तो मंसूबा तामीर कैसे होगा? और उसमें तकरीबन 5.5 अरब रुपए की गड़बड़ पहले ही हो चुकी है। ये सवाल मैंने आज NHA के जो जनरल मैनेजर M6 है मिस्टर प्रकाश उससे किया। मैंने उससे फ़ोन पे बात की और मैंने जब उससे पूछा कि जब ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन ही मौजूद नहीं है, तो वज़ीर आज़म ने जिस मंसूबे का संग बुनियाद रखा है वो तामीर कैसे होगा? तो उसने बड़ा एक हैरत अंगेज़ जवाब दिया और ये एक बहुत बड़ी खबर भी है। उसने जवाब ये दिया कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है, बैरूनी कंपनी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तक, उस कंपनी ने अभी तक अपना फाइनेंशियल क्लोज ही मुकम्मल नहीं किया। उसको फाइनेंशियल क्लोज मुकम्मल करने में तकरीबन 6 माह लगेंगे और जब तक वो कंपनी 6 माह के बाद ये फाइनेंशियल क्लोज कंप्लीट करेगी उस वक्त तक हम ज़मीन खरीद लेंगे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जो मंसूबा 6 माह तक शुरू ही नहीं हो सकता, जिसका फाइनेंशियल क्लोज ही नहीं हुआ, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इतनी जल्दी क्या थी कि उसका संग बुनियाद रखे, जिससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म को जल्दी सिर्फ इसलिए थी कि उसको इस मंसूबे की सिर्फ तख्ती लगानी थी जो आज उसने लगा दी। और ताहम उसने ये कहा कि जी मुझसे दूसरा सवाल ये हुआ कि जी नौशेरा फिरोज और मटियारी में जो घपला हुआ है उस ज़मीन के तो पैसे ही लोग खा गए, वही हड़प हो गए, तो फिर उस ज़मीन कैसे होगी? ये तकरीबन 100 किलोमीटर का पोर्शन है, जो 300 किलोमीटर का मोटरवे है, उस 100 किलोमीटर के पैसे पहले ही हड़प हो चुके हैं। क्या NHA ये नए पैसे देगी? सिंध गवर्नमेंट देगी? जब पैसे नहीं होंगे तो ज़मीन कैसे खरीदारी होगी? तो लगता ये है कि ज़ाहरी तौर पर यह मंसूबे की सिर्फ तख्ती लगी है, लेकिन इस पर अमल शुरू होना बहुत मुश्किल है। वैसे क्या खबरें हैं जो अब तक जो करप्शन सामने आई है और जिसकी के नाकाबिल तरदीद हकीकत है जो सामने आ चुकी है? 5.5 अरब रुपए के करीब तो ऑलरेडी हड़प हो गए और इससे 100 किलोमीटर की जो ये पट्टी है इसमें बड़ी ज़मीन की प्रोक्योरमेंट होनी थी वो भी नहीं हुई है। तो अब वैसे उस तहकीकात का क्या हाल हुआ है? जी खान साहब, तहकीकात के हवाले से जो मैंने अपडेट ली है तो एंटी करप्शन वालों का ये दावा है कि जी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मटियारी और की जो गिरफ्तार है और जो दीगर मुलजमान हैं उनसे जो इन्वेस्टिगेशन की है उनके नतीजे में
इन कुछ अमलाक का कुछ जो है असासों की निशानदेही हुई है जो इन मुल्ज़मान ने लूटे हुए रकूम से खरीदी है, ताहम उन इमलाक को उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया और ये कहा गया कि वो इमलाक ज़ब्त कर ली गई हैं जो सिंध में भी हैं और उसमें काफ़ी बड़ी इमलाक करोड़ों अरबों रुपए की पंजाब में भी है। उसकी तफसीलात बताई नहीं गई, ज़ाहिर नहीं की गई। और बाकी जो सबसे बड़ा मसला है खान साहब इसमें यह है कि इस वक्त 3 एजेंसियां एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। सिंध बैंक का जो CCTV कैमरा है वो FIA उखाड़ के ले गया है, उसका रिकॉर्ड सिंध बैंक का नवानुशर फिरोज का FIA के पास है, उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड एंटी करप्शन के पास है, मटियारी के रेवेन्यू का रिकॉर्ड डेप के पास है। तो एक ही वक्त इस मंसूबे का, इस फ्रॉड का जो रिकॉर्ड है 3 एजेंसियों के पास है और इस 3 मुल्ज़मान FIA ने गिरफ्तार किए हैं, 6 एंटी करप्शन ने किए हैं और 6 मुल्ज़मान का रिमांड एंटी करप्शन सक्कर के मजिस्ट्रेट से लिया गया है। 3 मुल्ज़मान का FIA ने रिमांड FIA बैंकिंग सर्कल हैदराबाद से लिया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो टोटली एक गड़बड़ का शिकार है और ये पूरे का पूरा जो फ्रॉड है या जो ये केस है उसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है और किसी ऐसी एजेंसी को ये पता नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन को कहाँ ले जाएंगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे और आपने अंदाज़ा लगाया कि किस किस्म की पब्लिसिटी की सिर्फ दुनिया है और किस अंदाज से कौमी मनसूबों के साथ सलूक किया जाता है। आज वज़ीर आज़म ने जल्द अज जल्द इस मनसूबे का संग बुनियाद तो रख दिया, जिसकी संग बुनियाद रखने से पहले उसमें अरबों रुपयों की करप्शन सामने आ चुकी है, मगर संग बुनियाद जिस मनसूबे का रखा वो संग बुनियाद ही रहेगा, एक संग ही रहेगा। इस पर काम तो अगले 6 महीने शुरू नहीं हो सकता क्योंकि जिस कंपनी को इसका ठेका मिला है उसने तो अभी अपना फाइनेंशियल क्लोज ही नहीं किया है, उसको अभी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे अपने फाइनेंशियल क्लोज करने के और जब वो फाइनेंशियल क्लोज करेगी उसके बाद इस मनसूबे पर किसी सूरत में वो काम करने के काबिल होगी और इसका आगाज़ हो सकेगा। मगर आज इसका बाकायदा बहुत ही तमतराक से इफ्तिताह कर दिया है वज़ीर आज़म ने, उसकी संग बुनियाद रख दी है। पूरी काबीना के कई अराकीन इसके लिए वज़ीर आज़म के साथ तशरीफ़ लाए और एक बहुत बड़ी तकरीब हुई है, एक हैदराबाद में हुई, एक सक्कर में हुई और इसका बड़ी धूमधाम से उस मनसूबे का संग बुनियाद रखा गया जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी तहकीकात जो है वो 3 मुख्तलिफ महकमे 3 मुख्तलिफ डायरेक्शन में 3 मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं और इसी वजह से उस करप्शन का अभी तक पूरी तरह से कि वो 5.5 अरब रुपए जो पहले इस मनसूबे से निकल लिए गए वो कहाँ कैसे वसूल होंगे ये अभी पता नहीं है। मगर जिसके लिए ये पैसे 5.5 अरब रुपए मुख्तस थे जो कि हज़म हो गए हैं वो ज़मीन तो अभी खरीदनी बाकी है, उसके लिए NHA ने ताज़ा तरीन 5.5 अरब रुपए अभी जारी करने हैं। तमाशा है, एक पूरी कहानी है जो आपके सामने हमने अभी रखी है। कमर्शियल